पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को देखें कि किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं एंशिएंट इंडिया से, प्राचीन भारत से। सारे बुक्स को पेज 1 से लास्ट तक नहीं करना है। जो टॉपिक्स आपकी यूपीएससी के सिलेबस में है, आप उस टॉपिक को उस किताब से देखें और हर टॉपिक पे ट्राई टू मेक 4 और 5 नोट्स और 4 और 5 पॉइंट्स। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है आपकी रणनीति बिल्कुल सही है। हेलो एवरीवन, आई एम राशिद यासीन, faculty at Khan Study Group at Delhi and as well as at regional centers. Now, today we are here to discuss about the strategy to be adopted for history optional for UPSC mains examination. We are going to discuss about this strategy to help you out to prepare for history optional without much difficulty. Clear? So first of all, what is the first step to be followed to start preparation for history optional? First major thing to be done is go through the syllabus given by UPSC related to history optional. And this syllabus will let you know that this subject has been divided into two papers, paper 1 and paper 2. Paper 1 have some topics and subtopics. Paper 2 has topics and subtopics related to ancient and medieval India, then modern and world history. All the 4 sections of history are covered in paper 1 and paper 2. First, you have to go through all the topics thoroughly to have an idea about the major topics to be covered while preparing for history optional. Once you have learned the syllabus thoroughly, now you still need to go through the identification of right materials to prepare for this examination, and you need to go for some major books as well. Coming to ancient India, you need to refer to books written by writers like Romila Thapar, then R.S. Sharma, D.D. Kosambi, along with basic readings like NCERT and the IGNOU materials. But when you read, what should be the approach and what should be the strategy? Clear? Take the topics mentioned in the syllabus starting from sources. The first topic in ancient India is sources. Take the first topic, that is archaeological sources or excavation and at the same time exploration. Look into the topics mentioned from different sources and always try to prepare 6 to 7 points on every topic and subtopic. Clear? So once you read the topic from any source, clear, try to get 4 or 5 or 6 important points from them and then prepare a short notes for yourself. Clear? This should be done with every topic and subtopic because notes making will really help you to revise and consolidate the things in later course of time. So mere reading of the books will not suffice. Rather, you need to have your own notes, handwritten notes that will really help you to revise in later course. Once you start making notes in course of time, try to revise those notes also regularly rather than preparing the whole syllabus in one single go. So once you prepare a large topic like sources, revise the topics again and again at least thrice, and then move to the next topic, that is proto-history or prehistory. Prepare the topic, write 5 to 6 points on every topic and subtopic like in this valley. Clear? You have to take 4 or 5 points on city planning, some important development related to arts and crafts like the bronze dancing girl or the bearded statue of a man. And after making the notes on those topics, including historiography, clear? Because there are different historians' views on origin of Indus Valley and the decline of Indus Valley. So look into the historiography because historiography plays a very important role in history optional. What are historians' views? What are the views of the experts on any topic? Because these experts' views have to be written to make the answer more consolidated. If you start preparing this topic by making notes and revising, it will help you to consolidate. क्योंकि जब भी आप कोई टॉपिक पूरी तरह करेंगे और अगर उसको आप कंसोलिडेट नहीं करेंगे रिवीजन से, तो वो टॉपिक आपके जहन में बहुत दिन तक नहीं रह सकता है और वो आपका कंसोलिडेटेड नहीं होगा. At the same time, when you start preparing these topics continuously, along with needing or making notes, clear? Once ancient India is done,
तब आपका दूसरा काम ये होगा कि आप पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को देखें कि किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं एंशिएंट इंडिया से, प्राचीन भारत से। और जब आप देखेंगे कि क्वेश्चन का ट्रेंड ऐसा है और आपने ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को लिखने की भी कोशिश करिए, क्योंकि लिखना और एक अभ्यास करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस एग्जाम के लिए, बिकॉज दैट विल इनेबल यू टू गेन द कॉन्फिडेंस दैट यू विल बी एबल टू राइट इफेक्टिव आंसर्स इन एग्जामिनेशन रूम। सो लेखन अभ्यास एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है इस एग्जाम में, और इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ये आप करते रहेंगे। जब एंशिएंट इंडिया इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा, आप पिछले सालों के क्वेश्चन को भी देख चुके होंगे, आपको ट्रेंड भी पता होगा, और अब जब आंसर्स लिखते हैं तो इन आंसर्स को कोशिश कीजिए कि कोई अच्छे टीचर से उनको इवैल्यूएट भी कराइए, ताकि आपको एक फीडबैक मिल सके कि कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, एंड यू कैन इम्प्रूव योर आंसर्स इन कोर्स ऑफ टाइम। क्लियर? इसी प्रकार से जब अब हम मिडिवल पे आएंगे, मध्यकालीन भारत पे आएंगे, तो इस टॉपिक में भी पहले आपको सिलेबस के सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को पहले देखना है, उन टॉपिक्स को समझना है पहले, और उन टॉपिक्स को समझने के बाद देन यू हैव टू स्टार्ट अगेन टेकिंग द बुक लिस्ट। क्लियर? बट जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया है, सारे बुक्स को पेज 1 से लास्ट तक नहीं करना है। जो टॉपिक्स आपकी यूपीएससी के सिलेबस में है, आप उस टॉपिक को उस किताब से देखें, और हर टॉपिक पे ट्राई टू मेक 4 और 5 नोट्स और 4 और 5 पॉइंट्स। क्लियर? जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, कंटेक्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, ना कि केवल कंटेंट पे ध्यान होना चाहिए। और जब इस तरह से नोट्स आप मध्यकालीन भारत में बनाएंगे, जिसमें आपके अर्ली मिडिवल पार्ट का होगा, दिल्ली सल्तनत का पार्ट होगा, मुगल साम्राज्य का पार्ट होगा, कुछ यहाँ पर प्रांतीय राज होंगे जैसे विजयनगर और बहमनी, इन पे नोट्स बना लीजिए आप। सारे नोट्स आप जब बना लेते हैं, बीच बीच में उसको रिवीजन करते रहिए आप। इसके बाद आप साथ साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स फिर से देखते रहिए कि क्या आप जो नोट्स बना रहे हैं, इससे प्रश्न जो पूछे गए हैं वो किस प्रकार के प्रश्न हैं, उनका नेचर क्या है, उस प्रश्न का डेप्थ क्या है, क्योंकि जब तक उस डेप्थ को आप नहीं समझेंगे तो आपका टॉपिक प्रिपरेशन पूरा नहीं होगा। और हिस्ट्री में मैं आपको एक बहुत बड़ी रणनीति बता दूं कि हिस्ट्री एक ट्रफ और क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चलता है। जब भी एक बड़े एम्पायर की आप तैयारी करेंगे और एक बड़े एम्पायर को तैयार करेंगे अपने एग्जाम के लिए, तो उसमें जो क्वेश्चन होंगे बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जहां पर प्रोविंशियल किंगडम्स की बात होगी वहां पर क्वेश्चन थोड़े जो हैं वो सुपरफिशियल होंगे। क्लियर? तो इससे ये पता चलता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कि जब आप बड़े एम्पायर की तैयारी करेंगे, जैसे मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे एंशिएंट इंडिया में, या दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में, तो यहां पे एक चीज है कि आपको बहुत डेप्थ में जाकर एक एक चीज को देखना है। मौर्य के प्रशासन को समझना है, या दिल्ली सल्तनत की आर्थिक व्यवस्था को समझना है, मुगल साम्राज्य की जागीरदारी व्यवस्था को समझना है। इसमें आपको डेप्थ में जाकर समझना होगा। और जब प्रांतीय राज करते हैं तो वहां पे आप सुपरफिशियल हो सकते हैं कि क्वेश्चन थीमेटिक होंगे, एक थीम पर बेस्ड होंगे। जैसे अर्ली मिडिवल इंडिया में आपसे प्रश्न होंगे कि व्हाट वर द कंडीशंस ऑफ वीमेन इन द अर्ली मिडिवल इंडिया, तो आपको एक थीमेटिक होगा वहां पे। तो मोटी मोटी बातें आपको सारे फेजेस में जाननी है, 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक। ठीक है? लेकिन जब आप साम्राज्य की बात करेंगे, एम्पायर की बात करेंगे, तो वो क्वेश्चन सुपरफिशियल नहीं पूछेंगे, वो आपसे इन डेप्थ क्वेश्चन पूछेंगे, जहां पे आपको बहुत डेप्थ में जाकर नोट्स बनाने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है, और आंसर लिखने की जरूरत है। ये आप पूरे इस फेजेस में करेंगे। ये हिस्ट्री में थ्रू आउट आपको इस फेजेस में करना है। तो उस इंपॉर्टेंस को आपको प्रीवियस ईयर के सालों के क्वेश्चन से पता लगाना है कि कौन से टॉपिक को किस हद तक तैयार करना है। इसी प्रकार से जब आप पेपर 2 में आते हैं, जिसमें आधुनिक भारत और विश्व इतिहास पूछा जाता है आपसे, आधुनिक भारत में का इतिहास ही शुरू होता है 18वीं शताब्दी से, जब ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय कंपनी भारत में अपनी स्थापना करते हैं। और यहाँ से आपको देखना है कि किस प्रकार से भारत में यूरोपीय शासन का प्रारंभ होता है, साम्राज्यवाद का प्रारंभ होता है, जिसे इंपीरियलिज्म कहा जाता है। एंड व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग इनटू दीज डेवलपमेंट्स, क्लियर, तो आप टॉपिक्स को फिर से देखें, हर टॉपिक से 4-5 क्वेश्चंस बनाएं। किताब की लिस्ट वही होती है, बिपिन चंद्रा या शेखर बंदोपाध्याय या सुमित सरकार, लेकिन आप जब नोट्स बनाएं तो नोट्स 4-5 नोट टॉपिक, हर टॉपिक पर 4-5 पॉइंट्स होने चाहिए, इवन 7-8 पॉइंट्स भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक। और जब आप नोट्स बनाते जाएं तो आप देखें उन टॉपिक पे पिछले सालों में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, क्या वो प्रश्न आपके आंसर से कवर हो रहे हैं नोट से, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है आपकी रणनीति बिल्कुल सही है। और साथ साथ में कुछ आंसर्स की प्रैक्टिस भी करते जाइए। और इसके साथ मॉडर्न इंडिया को इस प्रकार से तैयार कीजिए। बुक लिस्ट मॉडर्न इंडिया जब तैयार होता है तो आप विश्व इतिहास को आप पाते हैं। विश्व इतिहास में आपको बुक्स मैंने पहले बता रखा है, अर्जुन देव है, नॉर्मन लॉय
है, एल मुखर्जी है, ये किताबें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और जब इन किताबों को आप तैयार करते हैं, फिर हर टॉपिक और सब टॉपिक पे आप 6-7 पॉइंट्स को तैयार करिए। उसके साथ आप देखिए कि पिछले वर्षों में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, और पिछले साल क्वेश्चन जैसे पूछे गए हैं उसको क्वेश्चन के अनुसार आप तैयारी भी कीजिए, और तब लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए। ये एक डिटेल्ड रणनीति है हिस्ट्री ऑप्शनल को तैयार करने की, और इस पूरी प्रक्रिया में मैं आपको बता दूं लगभग 4 महीने का समय लगता है, और ये किसी भी वैकल्पिक विषय को तैयार करने में लगता है। और हिस्ट्री केवल एक एक्सेप्शन नहीं है। आप लेंथ ऑफ सिलेबस पर ना जाएं, बल्कि ये देखें कि आपको समय उतना ही लग रहा है जितना दूसरे ऑप्शन को तैयार करने में लगता है। और इस ऑप्शनल को किस तरह से तैयार करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस ऑप्शनल को आपको रेगुलरली करंट अफेयर्स के तहत अपडेट नहीं करना है। कारणवश आप पहले प्रयास में इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा नहीं कि अगले साल आपको फिर से एक नए सिरे से करंट अफेयर्स अपडेट करना है, क्योंकि नेचर ऑफ हिस्ट्री इज मोर और लेस स्टैटिक इन नेचर। तो आपको हमेशा अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होगी इस सब्जेक्ट को। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद यहाँ पे है कि अब इस रणनीति के साथ साथ एक पॉइंट पे मैं चर्चा करना चाहूँगा, वो है यहाँ पे मैप एंट्रीज पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। पेपर 1 में जो भी विद्यार्थी 150 मार्क्स से ऊपर ज़्यादा लाते हैं 250 में, उनके साथ सबसे एक कॉमन रणनीति होती है कि मैप एंट्रीज उनका बहुत स्ट्रांग होता है। और मैप एंट्रीज में आपको 20 साइट दिए जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। कोई पैलियोलिथिक साइट होगा, कोई मेसोलिथिक होगा, कोई बुद्ध साइट होगा, कोई टेम्पल साइट होगा, और उस पर आपको छोटे शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव नोट्स लिखने होते हैं। आपको इसके लिए ग्रिड पैटर्न की आवश्यकता होती है। ग्रिड पैटर्न जब आप करते हैं, ग्रिड पैटर्न का अर्थ यहाँ पे है कि जब आपको मानचित्र दिया जाता है एग्जामिनेशन रूम में, तो 4 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके आप एक ग्रिड बनाते हैं, और ग्रिड बनाने के बाद आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स बन जाएंगे मैप पे, और सेग्रीगेट करना, आइडेंटिफाई करना आपके लिए वो काफ़ी आसान हो जाता है। आप कंफ्यूज नहीं होते हैं वहाँ पे, ठीक है। और जब उसको आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव नोट्स लिखना बड़ी बात नहीं है। हिस्ट्री ऑप्शनल में इतना कुछ कर चुके होते हैं, हर साइट्स के बारे में आपको 30-40 वर्ड्स आता है, देन यू कैन राइट इजीली 30-40 वर्ड्स ऑन एनी साइट। क्लियर? फर्स्ट मोस्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई द साइट्स प्रॉपर्ली। इस पे मैं कहूंगा कि आप विशेष ध्यान दें। कोई ऐसी बुक मिलती है जैसे मैप एंट्रीज फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल जीके पब्लिकेशन, कोई ऐसी बुक्स मिलती है उस पर आप बहुत फोकस करें, और ताकि आप वो साइट्स को अच्छे से तैयार कर पाएं, और वहां पे आपको आउट ऑफ 50 मार्क्स यू कैन स्कोर 80% मार्क्स एज वेल। इससे आपका स्कोर पेपर 1 में 150 प्लस बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा आपको 4 प्रश्न लिखने हैं, और 4 प्रश्न लिखने के लिए मैं आपको बता दूं, मैं प्रेफर करता हूं कि मध्यकालीन भारत से आप 3 क्वेश्चन लिखें, क्योंकि ऑब्वियसली शॉर्ट नोट्स लिखेंगे आप मध्यकालीन भारत से, वो कंपलसरी क्वेश्चन होगा। तो मध्यकालीन भारत को अगर ध्यान से तैयार करते हैं, जिसकी हिस्टोरियोग्राफी भी बहुत अच्छी स्थापित है, तो आपको मार्क्स स्कोर करना आसान होगा। फिर केवल एंशिएंट इंडिया से आपको एक ही प्रश्न लिखना होगा, क्योंकि कुल मिलाकर 5 प्रश्न लिखने होते हैं पेपर 1 में। इसी प्रकार से पेपर 2 में देखेंगे तो उसमें भी 5 प्रश्न लिखने हैं। 5 शॉर्ट नोट्स आपको मध्य आधुनिक भारत से लिखने होंगे, और 5 प्रश्न आपको विश्व इतिहास से लिखना होगा। और इसके साथ साथ इसमें भी प्रयास करेंगे आप कि 5 प्रश्न आप 3 प्रश्न आप विश्व इतिहास से लिखें, जो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जिसमें किसी प्रकार का बहुत इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, और वो आपके लिए काफ़ी स्कोरिंग माना जाता है। इस तरह की रणनीति बनाते हैं अगर आप शुरू से, तो मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग साबित हो सकता है। और इस सब्जेक्ट्स के साथ, इस रणनीति के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका जीएस का एक बड़ा हिस्सा खुद ब खुद तैयार हो जाएगा, जिससे जीएस पेपर प्रश्न पत्र 1 में और इवन प्रारंभिक परीक्षा में 15 से 20 सवाल आप आसानी से सही कर सकते हैं, और जो हिस्ट्री ऑप्शनल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज माना जाता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।